Dear student, welcome back. So, in the previous discussion, we learned about the radiation network diagram. So, let us apply the radiation network diagram to a problem and learn how we can use it, how we can calculate the rate of heat that is leaving from a particular surface. So, for that, let us read out the problem that is shown on your screen. So the problem states in manufacturing the special coating on a curved solar absorber surface of area, say area is given, is cured by exposing it on the infrared heater of width 1 meter. The absorber and the heater are each of the length 10 meter and are separated by a distance h is equal to 1 meter. The upper surface of the absorber and the lower surface of the heater are insulated. See, in the diagram, it is what it's saying that there is the one curved solar absorber. This is the curved solar absorber. This is the curved solar absorber. On inner surface, say there is the process of coating. How? By heating, by the use of a heater which is separated at a distance. So the width of this absorber is 1 meter. This is the width, and width of the heater is again 1 meter. However, the length it is given, this length is 10 meter. Similar way, there will be the length of the heater. Both absorber and heater has length 10 meter. These all are surrounded by a room wall, that is the large as compared to the room heater and absorber. So let us have what is given other parameter. The temperature of heater is given. See, the temperature of heater is given as a 1000 Kelvin. The temperature of heater is given as a 1000 Kelvin. The emissivity of this heater is given as 0.9. The temperature of absorber is maintained at 600 Kelvin and its emissivity is 0.5. The system is kept in a large room. See, this is the large room. Why it is large room? Because it will form as a large cavity. It will be equivalent to large cavity which can be treated as a black body. So large room whose walls are maintained at a 300 Kelvin. What is the net rate of the heat transfer to the absorber surface? That means इस absorber surface पे कितना rate radiation पहुंच रहा है वो हमें determine करना है. So यहाँ पे आप एक mention आप statement समझ आ जाए कि the system is in a large room. Large room मतलब क्या हो गया कि सारा सिस्टम जो रखा हुआ है एक लार्ज कैविटी में है. तो अगर लार्ज कैविटी जो होगा वो किसके बराबर इक्विवेलेंट हो जाता है? ब्लैक बॉडी के बराबर. तो अगर हम रूम वाल की बात करें जो टेम्परेचर कितना पे मेंटेन है 300 केल्विन पे है, तो ये जो हम इक्विवेलेंट रूम जो वाल सरफेस है उसे हम लोग ब्लैक बॉडी मान सकते हैं. मतलब एक ब्लैक बॉडी जो 300 केल्विन पे मेंटेन है. So let us try to determine what is the net rate of the heat transfer to the absorber surface. इस surface पे कितना हीट आ रहा है. So to determine it, let us solve by following the standard procedure. What is the standard procedure? First, you have to write down what is known in your own language in few two or three lines. So what you need to determine, what you need to find out. Thereafter, you need to draw the schematic. So this is the schematic diagram. This is the absorber, curved absorber. This is heater. The width of the heat, both heater and absorber is 1 meter. Both are separated at a distance 1 meter. And there is the third wall body, which is maintained at a temperature 300 Kelvin. Since this wall is black body, so its emissivity will be 1. Now, in these cases, see all the radiation that will come out to this curved plate
शुड पास, अगर हम इसका एक प्रोजेक्टेड एरिया ले लें इसके पैरेलल में, हीटर के पैरेलल में, तो ये जो डेटेड डॉटेड लाइन है दैट इज रिप्रेजेंटेड, ये जो डॉट लाइन होगा इक्विवेलेंट दैट इज द रेक्टेंगल होगा इन दिस फॉर्म में, एक लेंथ के अलाउंग एक प्रोजेक्टेड मिलेगा। तो ये जो एरिया प्रोजेक्टेड एरिया होगा, जो भी रेडिएशन होगा, से यहाँ पे हम लोग पहले समझना हो कितना बॉडी है, तो हमारे पास 3 बॉडी है। पहला बॉडी कौन सा हुआ, हीटर, दूसरा सरफेस कौन सा हुआ, एब्जॉर्बर, और तीसरा सरफेस कौन सा हुआ, रूम का वॉल। तो पहला ये तो रियल सरफेस है, क्यों, इमिसिविटी भी देखिए 0.9 है हीटर का, इसका इमिसिविटी दिया हुआ है 0.5, लेकिन थर्ड का नहीं इमिसिविटी दिया हुआ है, पर आपने डिटरमिन कर लिया चूंकि ये लार्ज साइज का है, देयरफॉर इट मस्ट बी ब्लैक बॉडी, और इमिसिविटी ऑफ द ब्लैक बॉडी कितना होता है, 1 होता है। ये जो यहां से ब्लैक बॉडी जो बाल से, यहां से भी कुछ इमिशन जाएगा किसके पास, कलेक्टर के पास, इसके थ्रू भी जाएगा और इससे भी जाएगा। सो इसके पास जाएगा, लेकिन वो सारा इसी एरिया से पास होगा। देयरफॉर हम क्या इसका कैलकुलेट करेंगे, इसका एक प्रोजेक्टेड एरिया A2 प्राइम ले लेंगे। अब जो भी एनर्जी इससे पास होगा वही एनर्जी कलेक्टर के पास पहुंचेगा। मतलब हम ये कह सकते हैं, हमें डिटरमिन तो ये किया जा रहा है कि कलेक्टर के पास कितना एनर्जी पहुंच रहा है, और हम जानते हैं अगर ये प्रोजेक्टेड एरिया लेते हैं तो जो भी एनर्जी इसके पास पहुंचेगा इसी एनर्जी इससे पास होगा। या हम ये कह सकते हैं जो भी एनर्जी इस A2 प्राइम से पास होगा वो एनर्जी हर हाल में कलेक्टर के पास पहुंचेगा। दैट मीन्स अब हमारा जॉब क्या हो गया, हम थोड़ा सा शिफ्ट कर दिए अपना कैलकुलेशन कि ऑब्जर्वर के पास का कितना एनर्जी होगा उसको नहीं कैलकुलेट करके अब A2 जो प्राइम सरफेस है उससे कितना एनर्जी पास हो रहा है, ये पास हो रहा है। ये क्या है एक्चुअली में, A2 रेक्टेंगुलर बेस ऑफ ऑब्जर्वर सरफेस, तो हम उसके साथ कितना एनर्जी जो पास होगा दैट विल बी द एनर्जी दैट हैज रीच्ड टू द कलेक्टर। So in the next step we will have to write down the assumptions. So what assumptions we can have, so we should list it out. So first of all we will have the steady state conditions should exist, we will not consider any convection effect through the air or through the any the surrounding medium. So the absorber और हीटर सरफेस हम लोग क्या एज्यूम करेंगे कि डिफ्यूज है, ग्रे है, और ये कैरेक्टराइज्ड बाय किसका, यूनिफॉर्म इरेडिएशन और रेडियोसिटी होना चाहिए। द सराउंडिंग रूम हम क्या एज्यूम करेंगे, लार्ज, सच दैट ये जो रूम होगा वो किसकी तरह काम करेगा, ब्लैक बॉडी की तरह काम करेगा। सो these all were assumptions that we should incorporate during our analysis. So let's move on to the एनालिसिस। तो इन एनालिसिस हमने क्या फाइंड आउट किया कि हमारे पास 3 सरफेस है। कौन सा सरफेस, पहला सरफेस 1 से हीटर जो कि डिफ्यूज है, ग्रे है, और उसका यूनिफॉर्म रेडियोसिटी, यूनिफॉर्म इरेडिएशन है। दूसरा सरफेस ऑब्जर्वर है, से ऑब्जर्वर को दूसरा सरफेस हमने मारा, अगेन दैट सरफेस इज डिफ्यूज, ग्रे और यूनिफॉर्म रेडियोसिटी एंड इरेडिएशन है। थर्ड सरफेस कौन सा है, लार्ज सराउंडिंग रूम है, जो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करेगा। सो नेक्स्ट लेट्स आफ्टर द आइडेंटिफाइंग द 3 surface enclosure, let's discuss first to solve this problem. We will have the 2 method. We can solve this problem by use of radiation network approach, or we can use direct approach. So radiation network approach we will use first, thereafter we will calculate or solve the same problem by the use of direct method. So both the approaches we should learn by today's discussion. So first of all, in the radiation network approach क्या करना है आपको, सबसे पहला आपको रेडिएशन नेटवर्क कंस्ट्रक्ट करना है। तो उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स फॉलो करना है, तो वो हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। तो किस तरीके से हम अगर रेडिएशन नेटवर्क अगर ड्रॉ करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें कितना सरफेसेस है उसके कॉरस्पॉन्डिंग नोड आइडेंटिफाई करना है। रेडिएशन नोड्स कॉरस्पॉन्डिंग किसके, हर एक सरफेसेस। हमारे पास कितना सरफेसेस है, 3 सरफेसेस है, तो हमारे पास 3 रेडियोसिटी होगा।
उस तीनों रेडियोसिटी का नोड हमें पहले आइडेंटिफाई करना है। सपोज हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट सरफेसेस J1 का, दूसरा सरफेसेस J2 का नोड, तीसरा सरफेसेस J3 का नोड। J1 क्या है, हीटर का है, J2 एब्जॉर्बर और J3 वॉल का है। तो हमने पहला स्टेप नेटवर्क डायग्राम बनाने से पहले जितना सरफेसेस रहेगा उसका हमें नोड, रेडियोसिटी का नोड हमें ड्रॉ करना है। दूसरा बात, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, यही जो रेडियोसिटी नोड है इसको हम लोग कनेक्ट कर देना है एक स्पेस रेसिस्टेंस के थ्रू, हर एक रेडियोसिटी को एक दूसरे से साथ। तो यहां से अगर कनेक्ट करेंगे, करना चाहेंगे तो J1 के साथ रेडियोसिटी के साथ एक क्या आ जाएगा, स्पेस रेसिस्टेंस, इसमें भी एक स्पेस रेसिस्टेंस आ जाएगा, इसमें भी स्पेस रेसिस्टेंस आ जाएगा। ये जो स्पेस रेसिस्टेंस होगा ये किसके कारण आ रहा है, J1 और J3 के बीच का रिलेटिव ओरिएंटेशन के साथ के कारण, J1 और J2 का रिलेटिव ओरिएंटेशन के कारण आ रहा है। तो यहाँ पे ये जो रेसिस्टेंस आ जाएगा 1 अपॉन कितना आ जाएगा, A1 F13, ये कितना होगा 1 अपॉन A1 F1 F2, A1 अपॉन A1 F12, ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन A2 F23 या 1 अपॉन A3 F23। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की बात है कि अगर हम इसको ड्राइंग देखते हैं किस तरीके से जब जोड़ेंगे तो इस तरीके का एक सरफेस मिल जाएगा मुझे, देख लीजिए ये हमारा J1 हो गया, हमने किसके साथ कनेक्ट कर दिया गया, ये J2 J3 था, हमने इसको अगला स्टेप में ये कनेक्ट किया। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दिया जाए कि जो सरफेस 3 है, जो सरफेस 3 है वो लार्ज है, एरिया है, लार्ज रूम है, लेकिन उसका एरिया अनस्पेसिफाइड है, मतलब A3 हमें नहीं पता है। तो अगर हम स्पेस में A3 यूज करेंगे, जैसे इसका हम अगर यूज करना चाह रहे हैं कितना, इसको हम लोग लिख सकते हैं A3 F31 या A3 F32 आ सकता है। तो A3 F31 हम लोग नहीं यूज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि A3 को हम लोग अनस्पेसिफाइड किया हुआ, एरिया कितना है वॉल का वो हमें पता नहीं है। देयरफॉर अल्टरनेटिवली हम लोग क्या यूज करेंगे, A3 F31 अगर हमें जरूरत पड़ा है या A3 F32, इसको नहीं यूज कर करके इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे यूजिंग रेसिप्रोकेटिंग रिलेशनशिप। क्या 1 अपॉन A3 F31 किससे हो जाएगा, 1 अपॉन A1 F13, A3 F32 किसके बराबर, A2 F23। दैट मींस ये जो स्पेस रेसिस्टेंस है जिसे हम लोग यूज कर सकते थे या तो A3 F31 के बराबर या A1 F31 के बराबर, तो हम यहाँ पे इसको हम यूज करेंगे A1 F13, नॉट A3 F31, क्योंकि A3 हमें नहीं पता है। सिमिलरली यहाँ पे जो हम यूज करेंगे वो A2 F23 यूज करेंगे, ना कि A3 F32 करेंगे। क्यों, क्योंकि A3 हमें नहीं पता है। हम F13 और F23 इजिली ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन F31 और F32 डिफिकल्ट है कैलकुलेट करना। क्यों, क्योंकि A3 हमें नहीं पता है, अगर पता रहता तो भी वो कैलकुलेट हो सकता था। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। इसके बाद का स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि इसके साथ हम ब्लैक बॉडी इमिसिव पावर को, जो हर एक नोड से एसोसिएटेड इमिसिव पावर जो होगा, ब्लैक बॉडी इमिसिव पावर होगा, उसको हम लोग यूज करेंगे। सो हम लोगों ने इतना तक हमने ड्रॉ कर लिया है। कैसे हमने ड्रॉ किया, पहले नेटवर्क ड्रॉ किया है, पहले नोड ड्रॉ किया, उसके बाद स्पेस रेसिस्टेंस ऐड किए, स्पेस रेसिस्टेंस ऐड किए, स्पेस रेसिस्टेंस ऐड किए, ये स्टेप 2 हो गया। तो हमें इतना मिल गया है। अब उसके बाद क्या करेंगे, हर एक नोड के करस्पॉन्डिंग जो इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी है उसे हम लोग कनेक्ट करेंगे। कैसे, बाय एज्यूमिंग कि ये जो ब्लैक बॉडी है वो इसी सरफेस के बराबर का टेम्परेचर पे लाई कर रहा है। जैसे ये J3 के इक्विवेलेंट में क्या होगा, एक ब्लैक बॉडी EB3 आएगा जो सिग्मा T3.4 T3 के करस्पॉन्डिंग है, वो इमिसिव पावर होगा। सिमिलरली अगर हम J2 की बात करें, ये EB2 कितना होगा, J2 के टेम्परेचर के बराबर, तो सिग्मा T2 पावर 4 होगा। अगर EB1 हम जोड़ते हैं, कितना इमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी कॉरेस्पॉन्डिंग टू 1, तो कितना होगा, इसी के टेम्परेचर के बराबर सिग्मा T1 पावर 4 होगा। दूसरी बात, इन दोनों को हम लोग किससे कनेक्ट करेंगे,
एक रेसिस्टेंस है, दैट इज द सरफेस रेसिस्टेंस, विच इज द डेफिनेशन क्या कहता है कि 1 माइनस एप्सिलॉन 1, इसका जो इमिसिव पावर होगा, इमिसिविटी होगा 1 माइनस एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 1 A1। ये 2 और के बराबर कितना होगा 1 माइनस एप्सिलॉन 2 अपॉन A2। ये कितना हो जाएगा 1 माइनस एप्सिलॉन 3 A3। यहाँ पे ये देखना है कि चूंकि ये J3 ये खुद ही में ब्लैक बॉडी है, तो ये जो ब्लैक बॉडी बोथ शुड बी द J3 विल बिकम EV3। क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन 3 कितना हो जाएगा 1, तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा 0। यानी ये वाला पार्ट हम लोग इसको हटा करके इसके बराबर हम कितना लिख सकते हैं EV3 हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये EV3 किसके बराबर है, इमिसिव पावर के बराबर है। दैट मींस दिस विल बिकम सिग्मा T3 टू द पावर 4। इसको हम लोग डायरेक्ट G3 को हम लोग EV3 इक्वल टू सिग्मा T3 टू पावर 4 कर सकते हैं, क्योंकि J3 इज द लार्ज रूम है जो कि इक्विवेलेंट टू ब्लैक बॉडी है। सो ये हमारा ये वाला रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, या ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो हमारा कितना हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। सो हमने इस तरीके से नेटवर्क डायग्राम कंप्लीट कर लिया। नेटवर्क डायग्राम हमने कंप्लीट कर लिया। अब इस पे ध्यान देने की बात है कि अब हम थोड़ा सा साइज छोटा कर रहे हैं ताकि एक साथ में डायग्राम दिखे। सो अब हम इसमें से ये कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि देखने जा रहे हैं कि J3 को हमने नोड पकड़ेंगे, फिर J1 J2 1 by 1 नोड पकड़ेंगे। तो J3 का हमें पता लग गया कितना, J3 इक्वल टू EV3 सिग्मा T3 पावर 4। तो सिग्मा का वैल्यू हमें पता है, T3 हमें पता है, तो दोनों का जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या निकल गया J3 निकल गया कितना 450 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो J3 हमारा कैलकुलेट हो गया। अब दूसरा नोड हम पकड़ेंगे, या तो J2 पकड़े या J1, कोई भी एक 1 by 1 पकड़ेंगे। तो J2 नोड पे हम एनर्जी बैलेंस दिखाना चाहते हैं, रेडिएशन बैलेंस बताना चाह रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, जितना एनर्जी इस पे आएगा और कितना एनर्जी जा रहा है, इधर से कितना आ रहा है, ये एनर्जी आ रहा है और इसमें ये एनर्जी इधर की ओर जा रहा है। दैट मीन्स ये जो एनर्जी आ रहा है दैट शुड बी समेशन ऑफ दिस टू। तो ये एनर्जी कितना आ रहा है EB2 माइनस J2 अपॉन दिस वन हम लिख सकते हैं, EB2 माइनस J2 अपॉन दिस रेसिस्टेंस, दैट मस्ट बी इक्वल टू J2 माइनस J3। किसका J2 नोट कहा, J2 माइनस J3 अपॉन दिस फैक्टर दिस रेसिस्टेंस प्लस J2 माइनस J1 अपॉन दिस लिख सकते हैं। देयरफॉर ये हमारा नोड 2 का बैलेंस हो गया। सिमिलरली अगर नोड 1 पे हम एनर्जी बैलेंस देखते हैं तो यहाँ पे से जो एनर्जी आ रहा है Q1, ये जा रहा है Q13 और ये Q12 की तरफ। तो ये एनर्जी कितना आ रहा है, हम लोग लिख सकते हैं EB1, इसको हम लोग लिख सकते हैं EB1 माइनस J1 divided by this resistance, that will be equal to J1 minus J2 divided by this plus J1 minus J3 divided by 1 upon A1 F13। तो इस तरीके से हमारे पास तीनों नोड पे एक इक्वेशन मिल जाएगा और हमारे पास अननोन कितना होगा J1 J2 J3। हाउएवर J3 तो पहले ही ऐसे डायरेक्ट हमारे पास कैलकुलेट हो गया है, तो हमारे पास कितना अननोन है J2 और J3। इस तरीके से हमारे पास तीन इक्वेशन मिल गया। एक इक्वेशन हम इसको सपोज इक्वेशन 1 बोलते हैं और इक्वेशन 2 बोलते हैं। अब हमारे पास क्या क्या इसमें चाहिए होगा, अगर ध्यान देने वाली बात है इसमें, तो सिग्मा T2 पता है, एप्सिलॉन 2 भी पता है, एरिया भी पता है। हमें J1 J2 नहीं पता है, T3 भी पता है, एरिया भी पता है, लेकिन F12 नहीं पता है, F23 नहीं पता है, F13 नहीं पता और F12 नहीं पता है। मींस व्हाट, अगर हमें सेफ फैक्टर पता चल जाए, अगर हमें सेफ फैक्टर पता चल जाए तो हम लोग इसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं, किसको J1 और J2 के केस में। सो हमारा अगला टास्क क्या होगा, ये F12 निकालना, F12 निकालना, F23 निकालना, F13, दैट इज द सेफ फैक्टर। सो हम लोग
अगला स्टेप है इस शेप फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं. सो लेट अस कैलकुलेट वन बाय वन द शेप फैक्टर. सो अगेन वी आर रिड्यूसिंग दिस so that we can have the easier in the whole calculation seeing on the single slide. So हम लोग क्या करने जा रहे हैं, देखिए सबसे पहले F12 कैलकुलेट कर रहे हैं. So let us go to the diagram. हम लोग ये अगर अब थोड़ा सा पहले जाते हैं डायग्राम में फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग. ये देखिए क्या है, F12 हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं. तो हम ये 1 है, ये 1 सरफेस था और ये 2 सरफेस है. तो हम जानते हैं 2 F1 से 2 तक जो जाएगा वो इस प्रोजेक्शन के पास होकर के जाएगा A2 प्राइम के साथ. तो हम लोग क्या ले रहे हैं, ये F12 नहीं निकाल कर करके F12 प्राइम हम लोग लेंगे. तो हम लोग इस तरीके का एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना सकते हैं. ये एक तरीके का सरफेस आएगा और यहाँ पे एक ये सरफेस आ जाएगा जो कि इधर मिलेगा और एक ये इधर मिलेगा. यानी ये सरफेस से इस सरफेस के बीच में कितना रेडिएशन हो रहा है, एक्चुअली में मुझे ये डायग्राम बनाना है. तो अगर हम उसे अगेन रीड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरीके का मुझे सरफेस मिलेगा. तो वो क्या मिलेगा, हमें इस तरीके का सरफेस मिलेगा. ये कौन सा हीटर हुआ, एक रेक्टेंगुलर हीटर हुआ जिसका ये विड्थ दिखा रहा है और ये लेंथ दिखा रहा है. ये क्या है, प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर बेस हो गया किसका, ऑब्जर्वर का, जिसका ये विड्थ ऑब्जर्वर हो गया और ये लेंथ हो गया. सारा डायमेंशन हमें पता है. और फ्रॉम हीट ट्रांसफर डेटा हैंडबुक हमें पता है कि अगर ये शेप का कहीं मुझे पता हो तो हम Fij, सपोज I से J के बीच में, तो Fij हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला विच इज अ फंक्शन ऑफ x बार एंड y बार. x बार एंड y बार. और x बार का क्या डिफिनेशन है, x बार इज डिफाइंड एज x अपॉन l, y बार इज डिफाइंड एज y अपॉन l. x क्या है, ये वाला लेंथ को हम लोग x बोलेंगे और इसे y बोलेंगे और इसे l बोलेंगे. ये हमें 1 मीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये 10 मीटर दिया हुआ है और ये 1 मीटर दिया हुआ है. यानी x बार इज 1, y इज l, y is x is 1, y is 10, l is 10. So by substituting these all we can have x bar prime, x बार हमने 1 कैलकुलेट कर लिया, y बार 10 कैलकुलेट कर लिया. x बार और y बार को हम इस इक्वेशन में जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये फार्मूला हम कहां से लाए हैं, डिजाइन डेटा हैंडबुक से, सॉरी हीट ट्रांसफर डेटा हैंडबुक से लिए हैं. हीट ट्रांसफर डेटा हैंडबुक से आप लोग रीड आउट कर सकते हैं. तो इसका हम जैसे ही फॉर्मूला, याद रखने की जरूरत नहीं है, ये डिफरेंट कॉम्प्लेक्स जो शेप होते हैं उसका फॉर्मूला ऑलरेडी डेटा हैंडबुक में दिया हुआ रहता है, हीट ट्रांसफर डेटा हैंडबुक में. तो वहां से आप लोग इजीली रीड आउट कर सकते हैं और इसे सब्स्टिट्यूट करके हम जब कैलकुलेट करेंगे तो F1 ये क्या है, एक्चुअली में 2 प्राइम है, तो यही 2 प्राइम कितना 1.39 हो गया. दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, F12. So in this way we have calculated F12 as a 0.39. इसका एक और अल्टरनेटिव मेथड है कि सारा फॉर्मूला को कैलकुलेट करके एक चार्ट बना करके दिया गया है. वो चार्ट से एक ड्राइंग करके चार्ट बना दिया गया है. उस चार्ट से भी जब आप रीड आउट कर सकते हैं तब तो आपको आएगा 0.39. सो 2 तरीके से, या तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं या जो चार्ट दिया हुआ है, प्रेजेंट किया गया है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उससे आप Fij इस शेप का रिप्रेजेंट रीड आउट कर सकते हैं. सो हमारे पास F12 निकल गया 0.39. अब जब हम जैसे ही ये क्या है, एक नीचे का ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है हीटर, तो हम जानते हैं ये हीटर चूंकि फ्लैट सरफेस है तो F इस, अगर ये सरफेस 1 था तो F11 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. सो समेशन रूल क्या कहता है, F11 plus F12 plus F13 that must be equal to 1, that must be equal to 1. so ये समेशन रूल से क्या मिल गया, मुझे 1 हो जाएगा. F11 कितना है, 0 है. F12 कितना निकाला है मैंने, 0.39. अभी हमने 0.39 निकाला था. तो F13 कितना हो जाएगा, 1 minus F12, that means 1 minus 0.39 is equal to F13 0.61. अब हमें निकालने की जरूरत पड़ गया F23. 2 में कौन सा सरफेस है, द ऑब्जर्वर सरफेस. 3 हो गया लार्ज
वॉल, रूम वॉल का सरफेस हो गया है। तो ये F23 क्या दिखाएगा? द रेडिएशन दैट इज प्रोपोगेटिंग फ्रॉम सरफेस 2 टू सरफेस 3, F2 से 3 हो रहा है। अब ये 2 से 3 जो कि कर्व्ड सरफेसेस था, ये किससे पास होगा? इक्विवेलेंट ये जो A2 प्राइम हम लोग मान लेते हैं। तो हम एक्चुअली में क्या निकालेंगे? हमको निकालना है A2 F23, लेकिन हम इसको किसके बराबर लिख सकते हैं? A2 प्राइम F2 प्राइम 3, क्योंकि ये जो सारा A2 किसमें पास होना चाहिए? A2 प्राइम से होगा, उसी एरिया से पास आउट होना होगा। Therefore F2 प्राइम 3 will be equal to F2 प्राइम 3। अब फिर से अगर हम उसका डायग्राम हम देखना चाह रहे हैं, आप अगर फिर से हम उस पर डालेंगे डायग्राम में, तो इसमें से अगर हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये देखिए, ये देख लीजिए 3 जो सरफेस 3 है, 3 से जितना सरफेस 1 पे जाएगा और 3 से जो 2 पे जाएगा, चूंकि ये दोनों सिमेट्री है, देयरफॉर F32 प्राइम को हम लोग लिख सकते हैं F31 या F13 या F13 जो 1 से 3 की ओर जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू जो 2 प्राइम से 3 की ओर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बोथ आर सेम। तो सिमेट्री के कारण हमारे पास एक नया टर्मिनोलॉजी, एक नया हमें मिल गया है। So let us go to the calculation there। F23, so हमारे पास एक क्या मिल गया है? F2 प्राइम 3 इज इक्वल टू नथिंग बट F13। तो F13 हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 0.61। तो ये जो F2 प्राइम 3 है उसको हमने कैलकुलेट कर लिया 0.61। A2 प्राइम हमें पता है, A2 हमें निकल जाएगा, A2 हमें पता है। देयरफॉर F23 कितना हो जाएगा? हमें 0.41 निकल गया, 0.41 निकल गया है। सो हमने सारा सेफ फैक्टर कैलकुलेट कर लिया। अगेन हमारे पास सारा टेम्परेचर पता है, सारा टेम्परेचर पता है, तो हम लोग उसका इमिसिव पावर भी हम लोग निकाल सकते हैं। सिग्मा T1 की पावर 4 हमने इसको कैलकुलेट कर लिया, टेम्परेचर पता है तो सिग्मा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, इसको भी सब्स्टिट्यूट किया। तो सारा फैक्टर जैसे ही हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया है, कैलकुलेट कर लिया है, तो अब हमारे पास देखा जाए कि दो इक्वेशन था, जो पीछे दो इक्वेशन था, ये दोनों इक्वेशन में हमने सारा टर्मिनोलॉजी कैलकुलेट कर लिया एक्सेप्ट J1 एंड J2। सो सारा सिग्मा T2 कैलकुलेट कर लिया है, एप्सिलॉन सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, A2 दिया हुआ है, A1 दिया हुआ है, F12 कैलकुलेट कर लिए हैं, A2 दिया हुआ है, F23 कैलकुलेट कर लिए हैं, सिग्मा T3 पावर 4 कैलकुलेट कर लिए हैं, सिग्मा T1 पावर 4 कैलकुलेट कर लिए हैं, एप्सिलॉन 1 दिया हुआ है, एप्सिलॉन A1 दिया हुआ है, A1 दिया हुआ है, F12 कैलकुलेट कर लिया है, A1 भी दिया हुआ है और F13 भी कैलकुलेट कर लिए हैं। तो सारा जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मुझे दो इक्वेशन मिलेगा जिसमें J1 और J2 अननोन होगा। सो दो इक्वेशन मिलेगा और दो अननोन मिलेगा, तो हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं और सॉल्व जैसे ही करेंगे तो वो मुझे J1 J2 का वैल्यू मिल जाएगा। सो हमारे पास दो इक्वेशन कुछ इस तरीके से मिलेगा। सो ये आ गया, सॉल्व करने के बाद एक इक्वेशन J1 सिंपल लीनियर इक्वेशन आ जाएगा और ये एक आ जाएगा लीनियर इक्वेशन। तो दोनों को जैसे ही सॉल्व करेंगे तो J2 विल गेट एज ए दिस मच एंड J1 हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। दोनों इक्वेशन से मुझे J1 और J2 मिल जाएगा। सो J1 मुझे मिल गया और J2 भी मुझे J1 और J2 मिल गया है। अब हमें ये निकालना है कि कितना नेट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर ऑब्जर्वर सरफेस पे जा रहा है। दैट मींस Q2 के पास कितना एनर्जी आ रहा है, तो वो कितना आ जाएगा? Q2 हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल करके सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, सिग्मा T2 टू द पावर 4 माइनस J2 1 माइनस एप्सिलॉन 2 सिग्मा एप्सिलॉन 2 J1 A2। ये कैसे हमने किया है? आप नेटवर्क डायग्राम में जाइए, नेटवर्क डायग्राम में हम देखते हैं कि
सी J2 हमें निकालना है, तो ये J2 हमारे पास कितना हो जाएगा, इसका यही एनर्जी आ रहा है, J2 के पास कितना आ रहा है, यही वाला एनर्जी आ रहा है, कितना आ रहा है, EV2 माइनस J2 अपॉन दिस मच। तो हमने ये तो कैलकुलेट कर लिया, एप्सिलॉन भी दिया हुआ है, A2 भी दिया हुआ है, और अभी का भी हमने J2 कैलकुलेट किया है। तो जैसे ही हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना एनर्जी J2 के पास आ रहा है, वो कितना आ रहा है, इतना ही आ रहा है, तो ये हमें मिल जाएगा। सो वो एनर्जी कैलकुलेट जब करेंगे तो हमारे पास आएगा न्यूमेरिकल वैल्यू, जो कि कैलकुलेट करने के बाद देता है 77.1 किलोवाट। 77.1 किलोवाट हमें मिलता है कैलकुलेशन करने के बाद। सो ये आ रहा है Q2 का वैल्यू इतना। अब Q2 जैसे Q नेट की अगर हम बात करेंगे तो उसके पास आ जो रहा है वो निगेटिव में आ रहा है, दैट्स वाई हमारा जो उसका हमने क्या वैल्यू लेंगे, माइनस Q2। सो 77.1 kilowatt is the our answer. That was need to calculate, to find. So we have calculated the Q2 value by the use of radiation network diagram. So in the alternative method we have direct approach. So अब हम direct approach का यूज कर करके हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। So डायरेक्ट अप्रोच क्या कहता है कि हमारे पास एक इक्वेशन, हमारे पास एक था, क्या था इक्वेशन कि एक किसी सरफेस से जो नेट रेडिएशन होगा, रेडिएशन जो सरफेस से बाहर आएगा वो किसके बराबर होगा, अगर अदर सरफेसेस के पास जितना जितना जा रहा है उस रेडिएशन का पार्ट QIJ, उसका समेशन हो जाएगा। और वो QIJ कितना था, JI माइनस JJ अपॉन 1 अपॉन ओरिएंटेशन या शेप रेसिस्टेंस। और ये कितना रेडिएशन जा रहा है, EBI माइनस JI 1 माइनस एप्सिलॉन I टू EI। ये हमारे पास ऑलरेडी इक्वेशन है। तो ये किसके लिए है, एक पर्टिकुलर सरफेस I के लिए लिख रहे हैं हम। सेम तीनों इक्वेशन, हम तीन सरफेस है हमारे पास, तो हम डायरेक्ट तीनों सरफेसेस के लिए ये इक्वेशन अप्लाई कर देंगे। तो ये इक्वेशन अगर सरफेस 1 के लिए लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये EB1 माइनस J1 अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 1 A1, दैट विल बी इक्वल टू कितना आया, J इक्वल टू 1 to 2, तो यहाँ पे 2 आएगा, J1 माइनस J2 अपॉन 1 अपॉन A1 F12 प्लस J1 माइनस J3 अपॉन 1 अपॉन A1 F13। ये किसके लिए हमने लगा सकते हैं, 1 सरफेस के लिए, सिमिलरली 2 सरफेस के लिए, सिमिलरली 3 सरफेस के लिए करेंगे। तो इसमें जैसे ही हम सब कुछ करेंगे तो हमारे पास 3 इक्वेशन मिल जाएगा। वो इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, तीनों सरफेसेस के लिए हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंगली लिख सकते हैं। तो सरफेसेस 1 के लिए हमने लिख दिया, ये इक्वेशन आ गया। EV1 की इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा T1 टू पावर 4, हमने वो सब्स्टिट्यूट कर लिया। सिमिलरली ये EV2 आ जाएगा, उसमें सब्स्टिट्यूट कितना कर देंगे, सिग्मा T2। अब यहाँ पे ये देखना है कि F21 की जगह हमने क्या लिख दिया, A1 F12 हमने यहाँ पे कर दिया यूजिंग रेसिप्रोसिटी थ्योरम। सिमिलरली फॉर सरफेस 3 के लिए करेंगे तो ये वाला इक्वेशन हम लिख सकते हैं। इसके केसेस में अगेन इतना लिखा जाएगा। सो 3 इक्वेशन में हमारे पास जैसे ही सारा F1 हमारे पास F12 F23 हम लोग फिर से कैलकुलेट कर सकते हैं, हालांकि इन द प्रीवियस पार्ट में हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। सो डायरेक्टली दैट फैक्टर हम लोग उसको सब्स्टिट्यूट कर करके हमारे पास J1 और J2 का वैल्यू मिल जाएगा। सो J1 और J2 का कैलकुलेट 3 इक्वेशन है, 3 अननोन मिलेगा, J1 J2 और J3। इसके अलावा सब कुछ दिया हुआ है, सेफ फैक्टर कैलकुलेट करने की जरूरत है। तो हमने भी सेफ फैक्टर कैलकुलेट कर लिया है, वही डेटा हम लोग डायरेक्ट यूज कर लेंगे और उसको हम यूज करते ही हमारे पास 3 वैल्यू आएगा। कौन कौन सा, J1 का, J2 का और J3 का कैलकुलेटेड डेटा आ जाएगा। देयरफॉर J1 J2 J3 जैसे ही कैलकुलेट हुआ हमें 3 मिल गया है। देयरफॉर सरफेस 2 के लिए हम फिर से यूज कर सकते हैं ये इक्वेशन, सिग्मा T2 to the power 4 minus J2 upon 1 minus epsilon 2 upon epsilon 2 A2
इसमें हमें ये कैलकुलेट किया हुआ है, J2 अभी जस्ट हमने कैलकुलेट किया है 12487 और एप्सिलॉन 2 दिया हुआ है, A2 भी दिया हुआ है। जैसे हम कैलकुलेट करेंगे तो फिर से 77.1 किलोवाट आएगा। तो ये जो सेकेंड है डायरेक्ट मेथड है, वो जनरली हम वहां पे यूज करते हैं जब हमारे पास 4 या 4 से ज्यादा सर्फेसेस इन्वॉल्व हो। अगर उससे कम हो तो ये रिकमेंड किया जाता है कि रेडिएशन नेटवर्क थ्योरी ही, डायग्राम ही यूज करना चाहिए। Therefore, in this way we have learned and we discussed about we learned the application of the radiation network diagram or the direct approach. So uh, we learned today, we learned the application for application to the numerical problem. So in the next discussion we will learn about the next topic. So till then allow me to leave. So thank you for listening me.